Hello friends, in the previous video we have discussed about how can we find factors and multiples of a given number. So now in this video let us discuss how can we find the prime factors of the given numbers with the help of prime factorization method. And after the prime factorization we will see how can we find the LCM and HCF of given numbers. So prime factorization जानने के लिए let us take one example as one number as an example. Let us suppose we are going to find the prime factors of 120 with the help of prime factorization. So to find the prime factors of 120 with the help of prime factorization, we will start with the smallest prime number. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है. क्या ये 122 से डिविजिबल है? क्या ये 122 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. So we will write a divisor here, and the quotient will be written here. So 2 6s are 12, 2 zeros are 0, 2 30s are 60, 2 15s are 30, then 3 5s are 15, and 5 1s are 5. So now after writing 120, we can write 2 into 2 into 2 into 3 into 5. So these are the prime factors of 120. This method is known as prime factorization method. Let us take one more example to find the prime factors of a given number. Let us suppose we have a number 240. ये कैसे हुआ? तो 240 को लिख देते हैं. Then 260 और 120. सिमिलरली जैसे अभी इसके पहले वाले को किए थे सेम वैसे ही हो जाएगा ये भी सॉल्व. So 240 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5. This can also be simplified as how many 2s are written? 3 times. So 2 power 3 into 3 into 5. Here also 2 power 4 into 3 into 5. So this method is known as prime factorization method. अब यहाँ पे जो दोनों नंबर्स लिए गए हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जो इवन नंबर है जो 2 से स्टार्ट हो जा रहे हैं. Let us take one more example. Let us take 45. How can we do the prime factorization of 45? अब ये 45 को अगर हमें 2 से डिवाइड करना है because smallest prime number is 2, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं. अब 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या मिलेगा? 3 से देखिए 3 से 45 डिविजिबल है? बिल्कुल है. सो 3 15s are 45 and 3 5s are 15 and 5 1s are 5. So 45 can be written as 3 into 3 into 5 and 3 power 2 multiplied by 5. So this is the prime factorization of 45. So with the help of this prime factorization method, we can find the LCM and HCF of given numbers. Now let us see how can we find the HCF of given numbers with the help of prime factorization method. I have written some pair of numbers and some numbers to find the HCF. Now let us see first how can we find the HCF of 24 and 28. 24 और 28 का HCF कैसे find होगा? तो सबसे पहले 24 को देख लेते हैं. 24 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. So it can be written as 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3. Similarly, 28 के भी प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं. So 2 14s are 28, 2 7s are 14 and 7 1s are 7. इसे भी ऐसे लिख लीजिए. Now we have to find the HCF, that is highest common factor. To find the HCF, see their factors. जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें आप ऐसे सर्कल कर लीजिए. दिस 2 इज कॉमन. 2 एक ऐसा फैक्टर है जो 24 का भी है 28 का भी है. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए ये वाला 2 भी 24 का भी फैक्टर है 28 का भी फैक्टर है. अब आगे देखो कोई ऐसा फैक्टर मिल रहा है जो दोनों में कॉमन है? नहीं है. तो जो कॉमन मिल रहा है उसे एज इट इज लिख दीजिए. सो 2 into 2 that is equal to 4. So 4 is the HCF of 24 and 28. It means 4 is that highest factor which is common in both 24 and 28.
4 एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट है, जो 24 और 28 दोनों को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 36 एंड 54। ये कैसे होगा? ऐसे ही ये भी 36 के फैक्टर्स को लिख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। So 36 can be written as 2 into 2 into 3 into 3 and ऐसे ही 54 भी देख लेते हैं। So 54 can be written as 2 into 3 into 3 and again into 3. So what will be their HCF? Now see which factors are common. तो सबसे पहले तो ये भाई 2 दिख गया कॉमन, सर्कल कर लो। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बट आगे यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो इस 3 को सर्कल कर लीजिए। नेक्स्ट इस 3 को सर्कल कर लीजिए। जितने सर्कल किए हैं यहाँ जो पेयर सर्कल है उसको लिख लीजिए। सो 2 मल्टीप्लाई बाई दिस 3 एंड अगेन दिस 3। ये 2 और ये 3 बच जाता है, रहने दो, छोड़ दो, जैसा लिखा है वैसे लिख रहे हैं। सो 2 into 3 into 3 that is 2 3s are 6 and 6 3s are 18. So 18 is the HCF of 36 and 54। 18 से बड़ा कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो 36 को भी डिवाइड कर देगा और 54 को भी डिवाइड कर देगा। तो दिस इज द HCF of 36 and 54। नाउ वी हैव 3 नंबर्स। जैसे 2 नंबर का HCF फाइंड करना है, वैसे 3 नंबर्स का भी HCF फाइंड करना है। कोई नया रूल नहीं है, मेथड वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है। देखो भाई, पहले 10 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। So 2 5s are 10 and 5 1s are 5. Again 25 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 5 5s are 25 and 5 1s are 5. 30 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 15s are 30, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. सबके प्राइम फैक्टर्स को लिख लो। So 10 is equal to 2 into 5. 25 is equal to 5 into 5 and 30 is equal to 2 into 3 into 5. अब ये देखो कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 चलो 10 का फैक्टर है, 25 का नहीं है, 30 का फैक्टर है, बट 25 का नहीं है, तो 2 को कंसीडर नहीं करना है, आगे बढ़ना है। 5 को देखिए तो 5 10 का भी फैक्टर है, 5 25 का भी फैक्टर है, 5 30 का भी फैक्टर है। तो किसी एक 5 को हम यहां से तीनों में सर्कल कर लेंगे। 3 बच रहा है तो 3 सिर्फ 30 का ही फैक्टर है, 25 और 10 का नहीं है, उसे भी कंसीडर नहीं करना है। सो वी हैव 5 ओनली। So HCF of 10, 25 and 30 is 5. Means 5 से बड़ा कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो 10, 25 और 30 तीनों को डिवाइड कर देगा। So the HCF of 10, 25 and 30 is 5. So now let us see how can we find the LCM of the given numbers. LCM means least common multiple. देखिए अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो वही है। मींस वी हैव टू राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। लेट अस सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 28। तो पहले 24 के प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए जैसा अभी लिखा था, फिर 28 के प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए जैसा अभी लिखा हुआ था। नाउ टू फाइंड द एलसीएम, जो आपने सर्कल किया था ना एचसीएफ फाइंड करने के लिए, उन फैक्टर्स को एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट जो फैक्टर्स बचे हुए थे, those factors which are left, we have to write those factors also. So 2 into 3 into 7. Now multiply them. So 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24, and 24 into 27, what will we get? 168. So 168 is the LCM of 24 and 28. मतलब 168 एक ऐसा नंबर है जो 24 का भी मल्टीपल है और 28 का भी मल्टीपल है, बट सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। ठीक है। नेक्स्ट 36 और 54 का अगर एलसीएम फाइंड करना है तो सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है जो अभी हमने इसके पहले वाले स्टेप में किया था। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये तो जो सर्किल फैक्टर्स हैं वो हैं, जो बचे रह गए हैं उन्हें हम लिख लो इंटू 2 इंटू 3। सो 2 3s are 6, 3s are 18 and into 6, that is equal to 108. 108 is the LCM of 36 and 54. So 108 is that number which is divided by, completely divided by 36 and 54, इन दोनों का मल्टीपल है और सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही 10, 25 और 30 में भी यही करना है। अब इसमें बच्चे थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कल करने के बाद तो बहुत ढेर सारे नंबर बच रहे हैं, तो उन्हें कैसे लिखना है। तो फर्स्ट वी विल राइट द सर्किल्ड फैक्टर 5। अब देखो ये 3 बचा रह गया है, 5 बचा रह गया, दोनों अकेले हैं, मतलब इनके
के साथ कोई और भी फैक्टर नहीं है, बट यहाँ जो 2 है ना, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, तो इन्हें 2 बार नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट इट वंस ओनली। लिख दो, क्या मिलेगा, 5 3 का 15 एंड 5 2 का 10, दैट इज 150। सो 150 is the LCM of 10, 25 and 30. It means this 150 is that number which is the multiple of 10, 25 and 30 and it is the smallest multiple. इसके पहले कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। So this is the basic concept to find the LCM and HCF of given numbers with the help of prime factorization. अगर ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो LCM फाइंड करने का एक छोटा सा इसी में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। आप दोनों नंबर को साथ में लेके भी चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द LCM ऑफ 24 एंड 28, दोनों को साथ में लिख लो। अब सॉल्व कर दो, चलो। सो 2 12 द 14, 2 14 द 28, नेक्स्ट 2 6 द 12, 2 7 द 14। नाउ अब देखना है कि किस नंबर को यहां तो लिखे जो 6 को डिवाइड कर दे, 2 कर देगा। सो 2 3 द 6, बट 2 7 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो 7 को एज इट इज जैसे लिखा था वैसे लिख दो। नाउ अगेन 3 1 द 3, 7 1 द 7, कर दो मल्टीप्लाई भाई इनको, तो क्या मिलेगा, इन्हें एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 into 2 into 2 into 3 into 7। सो यू विल सी जो फैक्टर्स यहां लिखे थे वो सेम फैक्टर्स यहां मिल रहे हैं। तो अगर ये वाला स्टेप तुम्हें थोड़ा लेंदी लग रहा है तो दोनों नंबर्स को साथ में लेकर भी चल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 24 into 7 दैट इज इक्वल टू 168। दिस मेथड कैन बी फॉलोड फॉर ऑल द गिवन pair of numbers, all the numbers that has been written here. So this is the basic concept to find the LCM and HCF of the given numbers with the help of prime factorization. And in the next video, we will discuss some more questions related to the LCM and HCF. So that's all for today. Thank you.